On behalf of our Honorable Principal Ma'am and staff, we extend a hearty welcome to the resource persons and participants in our one-day capacity building program on the topic Art Integration. Good morning to all of you. Good morning. You feel it's a pleasant, it's not raining outside today. So it's a pleasant morning to all of you. First of all, a warm welcome to our resource persons, Ms. Urvashi Bhatia and Dr. Upasana Vashishta. Give them a round of applause. Participants, not only from our school, but from the other schools also, a warm welcome to all of you. All the teachers from the different schools and from our own school. Warm welcome to all of you. She is a science graduate from Guru Nanak University, postgraduate in English from HPU Shimla, done her Masters in Education from HPU Shimla. She did her doctorate in English from Sagar University. She is awarded by Center for Educational Department, New Delhi, as Best Educational Leader Award 2018. Lead pilot study for SQUA. I think everybody is aware of the SQUA. She has prepared manuals on toy pedagogy and storytelling pedagogy with CBSE Panchkula. It's a great achievement, ma'am. Presently, she is working as the Principal Director at Florence School, Solan, and President Solan Sahodya School Complex, Solan. So a warm welcome to you, ma'am. We are excited to learn a lot of things from you. Thank you, Shri Bhatia. May I have the light? Yeah. She is a certified presenter and trainer of Cambridge University, UK. International English for speakers for other languages, Manipal City, and train the trainer certified from Bankers Academy. So it's a great achievement, ma'am. She has won Best Speaker Award under the Professor B.M. Jory Annual Competition Institute jointly by Delhi University and Government of India. She was honored by the Bharat Electronics Limited, Indian Air Force, Chandigarh Police, Punjab University, the Hindustan Times too. Ma'am, you have so many achievements to count. She was also felicitated by the Indian Air Force on 23rd July 2024 at Air Force Auditorium, New Delhi, for addressing nearly 250 principals and headmistresses from across the nation on importance of communication skills in teaching. Congratulations, ma'am. She has also served as principal of Indian Air Force schools across the nation, taught communication and soft skills in Kendriya Vidyalaya too. For nearly 5 years, she has anchored the annual Principals Leadership Meet on behalf of Tribune
and the other universities. Again, ma'am, what to say about it? And assessor for the Scholastic International by nearly 3 years now. She is also a trainer at Ryan International School on behalf of the spoken English skills. And she has been performing the duties as a resource person as assigned by CBSE. She's on CBSE panel 2. One-day capacity building program on art integration. Thank you so much for coming here, ma'am. And today we are here for one-day capacity building program on the topic art integration. So CBSE has taken up this initiative so as to include arts in teaching learning process. I think everybody of you must be aware what is art integration is. Are you? Yes. Are you? I think this initiative has been taken by CBSE, I think few years back, that in every subject, the incorporation of arts is very important, and how by incorporating this art integration in the various subjects, we can make our teaching learning process interesting, joyful, and to make the concepts more clear to the students when we are utilizing these strategies and methods. So in this capacity building program, we expect from both the resource persons, those who come from faraway places. Ma'am is from Solan, Urvashi ma'am is from Jiratpur, Chandigarh. So they are here to discuss various strategies, various methodologies, that how we are able to incorporate art integration in our teaching learning process. So looking forward to hear from you, ma'am. Now the stage mic is all yours. I invite Ma'am Urvashi Bhatia to just take over. Thank you so much, and once again a warm welcome to all of you. मैं अपने आप को हमेशा मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब भी मैं गुरुओं के सामने खड़ी होती हूँ। ये आज की बात नहीं है, ये असंख्य वर्कशॉप में हो चुका है। मैं जब भी गुरुओं के सामने खड़ी होती हूँ, या तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं या मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि भगवान मुझे ये फीलिंग देता है कि मैं उनके सामने खड़ी हूँ, हिंदुस्तान का और आगे जाके विश्व का भविष्य तराश करें। आप एक मूर्तिकार की तरह हैं जो एक पत्थर में से सुंदर मूर्ति तराशे। कबीर जी ने आपको सम्मान दिया ये कह के, गुरु गोविंद दो खड़े, आपका स्थान जो है जब कोई यहाँ खड़ा होता है तो वो सिर्फ उर्वशी भाटिया नहीं होता, उसका स्थान उस वक्त ये अपनी अपनी सोच की बात है। उपासना वशिष्ठ मैम जी, कल मैम लॉस्ट हर मामा जी, और वो फिर भी आज यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई। क्या हम एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए खड़े होकर उनके मंगल की प्रार्थना कर सकते हैं? उसको एक विधि है, वो विधि दे के फिर मैं शांत हो जाऊंगी। फिर उपासना मैम जी, दुनिया की कोई भी भाषा, ये तो मूल शब्द ब्रह्मांड का माना जाता है, चाहे वो भाषा रशियन हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा, हमारा शरीर का जो मैकेनिक्स है, जैसे श्री कृष्ण की एक बांसुरी सेट की हुई है हमारे अंदर, एक्सहेल करते वक्त ही भाषा उत्पन्न हो सकती है। ध्वनि जो है सिर्फ एक्सहेल करते वक्त ही उत्पन्न हो सकती है, इनहेल करते वक्त। ये आपकी नाभि तक, नाभि आपकी क्या मानी गई? प्राणाधार मानी गई, रावण का यही पर अमृत। सिमिलरली मुख है चौक पे, और ये आपकी नाभि। इतना क्लियर है सबको? अगर नहीं भी दिख रहा तो भी इमेजिन कर लीजिए दिख रहा है। मुख से लेके नाभि तक 100। तीन भागों में बांटा। अपनी छोटी उंगली अपनी नाभि पे रखिए, सब नाभि पर छोटी उंगली रखिए। देखिए अंगूठा कहाँ पर आके रुक रहा है। बायोलॉजी टीचर्स, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन बिल्कुल चेस्ट के बीच में आके रुक रहा है। ये हिस्सा 35%, यहाँ से लेके यहाँ, दिस इज 35%। क्लियर? अब ऊपर आ जाइए, ऊपर आइए। देखिए अंगूठा आप कहाँ पर आके रुक रहा है? कंठ के
बिल्कुल बेस पे आया, हमने बीच में नहीं आया, ऊपर नहीं आया, कंठ के बेस पे। दिस इज द नेक्स्ट 35% फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? 35 और जो बचा दैट इज 30%, दैट मेक्स अ ग्रैंड टोटल ऑफ 100. दिस इज आवर 30%. ओम अगर आप उधर ध्यान से देखो तो 3 हिस्सों का बना है। पहला हिस्सा क्या है? ओ। दूसरा हिस्सा अ और तीसरा हिस्सा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का इसमें समावेश, राइट? सो नाभि से जब हम ध्वनि उत्पन्न करेंगे दैट विल बी ओ, राइट? पहला 35% है, उसमें ओ। नेक्स्ट 35% में अ एंड नेक्स्ट में आपको गुरु संस्कृत में अगर संधि करें ग माने अंधेरा और र माने वही सच्चा गुरु, राइट? 35 5-10 सेकंड के लिए भी हर क्लास से पहले बैठ जाए, आपकी ब्रेन की सारी नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है। अगर इस तरह से भी बच्चा 5 सेकंड के लिए आप क्लास से पहले शुरू करवा दे। मेरे गुरु थे श्री इंदर कुमार मित्तल जी, मैम के भी, जिन्होंने मेरी TOT CBSE 27 और 28 दिसंबर को पिछले साल उन्होंने हमसे वचन लिया था कि आप क्लास शुरू होने से पहले एक ये प्रार्थना करवाएंगे, क्योंकि आज हमारे समाज में महंगे कपड़े और गैजेट्स तो पड़ रहे हैं, लेकिन संस्कार कहीं पर, ये आप सब महसूस कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा आप फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, एनीथिंग, बट फॉर द फर्स्ट 2 or 3 मिनट्स ऑफ योर क्लास आपको संस्कारों की, इंडियन वैल्यूज की बात करनी। आज हमारे देश में वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? राम जी ने तो नहीं भेजा था अपने पापा को जंगल में, जेल में कि भैया मैं रह जाऊँ। सो वी आर लूजिंग समथिंग रियली मीनिंगफुल। अ फूल नोज द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। आइए वैल्यूज को वापस लेकर आते हैं आर्ट इंटीग्रेशन के माध्यम से। अब मैं 2-3 गहरी सांसें लूंगी। जल्दी मत करना कि भाटिया मैम का ओम जो था वो 5 सेकंड या ये वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है दोस्तों? आपका सिद्धांत समझना, इसको अपने मैकेनिक्स के साथ जोड़ो। बेशक 2 सेकंड 3 सेकंड का बोलो, लेकिन करना वो राइट? अब मैं ध्यान में जा रही हूँ। आपको धीरे धीरे ना खुद महसूस होने लगे, यहाँ तक प्राण यहाँ तक आ गए, वाइट यहाँ तक। यंगर साहब इज अ योग गुरु फ्रॉम इंडिया, वो कहते हैं ब्रेथ इज द किंग। हम अपनी लंग्स की टोटल कैपेसिटी का मैम 1000 हिस्सा भी नहीं लेते। पुराने ऋषि मुनि कैसे पढ़ते थे? जंगलों में पेड़ों के नीचे पढ़ते थे। वो वीडियो आज आपके सामने आने वाला है। वी आर रियली सिटिंग इन एन एयर कंडीशनड एनवायरमेंट, वी आर रियली नॉट ब्रीदिंग। 5 गहरी सांसें भी इंसान ले ले, सारा पूरा बॉडी एक्टिवेट हो जाए। वंस अगेन आई डू। अभी ओम मत बोलना, अभी सिर्फ एक बार देखो, उसके बाद आप लोगों ने करना है और करवाना है, राइट? गुरु का काम ही होता है कि मैंने एक ने सीखा, मुझे लाखों में बांट। सिर्फ देखो एक बार। सुखासन में बैठे, ठीक है? क्लोज योर आईज, टेक 4-5 डीप ब्रेथ्स। महसूस करो मुझे जीवन दान मिला है ग्रैटिट्यूड से, फिर उसके बाद करना। ओ में मुंह खुला है, अ में मुंह खुला है, म में मुंह बंद है। जैसे भ्रामरी, प्राणायाम 5 होते हैं, उसमें एक भ्रामरी होता है, जैसे मक्खी बिन बिन करती है। आप करके देखो दोस्तों। आप सुखासन में बैठो, पीठ सीधी कर, सीधा गर्दन सीधी।
5 के बाद शुरू कर दीजिएगा दोस्तों। शांति से सांस छोड़ो, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, 2 बार और करेंगे। 5 गहरी सांसें लो, फिर से गिन के 5 गहरी सांसें लो। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश भाटिया था। देसी साबुन की चक्की से शेव करने के लिए झाग बना रहे और मुझे गायत्री मंत्र सिखा रहे हैं। तो ये मेरी एक श्रद्धांजलि उनको भी है। ओम का मतलब होता है सर्व रक्षक परमात्मा, जो सब तरह से आप सबकी रक्षा करें ताकि आप हिंदुस्तान का भला कर सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। On each table in the center, in the middle of the table, just one body. Just one body, and rest. Please put it aside for a few minutes. Okay, shall we all stand up? Do as done. Okay, do as done. Hands on your shoulder. You have to be very quick about it. Hands on your shoulder. Hands on your knees. Okay, waist, shoulder, waist, shoulder, waist, knees. You have to be quick. If you haven't done your morning session exercises. So, waist, shoulder, knees, head, bottom. So everybody was first. Please be seated. Wonderful. And out. So my first question is, since you all of us are teachers, how will you write if ma'am knows the answer, but she ma'am need not to disclose, because I'm sure she might be knowing it. How will you write on the white board with a white pen, with a white marker? Experience, how will you write on the white board with a white marker? At least try. Ma'am, the pen outer side might be white and it might be blue from inside, and we can write it on the white. The color of the outer color, the attribute of that pen might be white, and inside it can be red, black, and anything else. Very good. Any other response? There would be other possibilities, right? Ma'am, we can change the background. Ma'am, scribble with blue marker and then write with We can change, somebody said we can change the background. Yeah. Yes. Correct. Any other guesses? We can change the marker. We can change the marker. Correct. We can change the. So I believe everybody has learned some creative techniques. Yes, from the gentleman in the house. Marker on a white. Take out this page from your diaries, from your notepads. Take a color pen or whatever pens you have. Let us all define ourselves, connecting with the Mother Nature.
small example. Okay, Radha, there are two activities. First is for introduction. So in the half part of the paper, I think everybody got it. In the half part of it, connect yourself with the nature. Like I say, I'm a big flower. So you could be a root, you could be a leaf, you could be a stem, you could be a flower, you could be a gentleman, you could be a bumblebee. तो अपने इंट्रोडक्शन के लिए आप अपने आप को नेचर के साथ डिफाइन करेंगे. अगर आपको लगता है आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप एक पेड़ की रूट हो सकते हैं, तना हो सकते हैं, पेड़ हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं. एंड आई एम रूट. वाई? मुझे क्यों लगता है कि मैं अपने आप को एक हरे पत्ते से डिफाइन करती हूँ, या मैं अपने आप को एक फूल से डिफाइन करती हूँ. और अगर हमारे जेंटलमैन चाहेंगे तो अपने आप को बम्बलबी को हिंदी में क्या कहते हैं? भंवरा. जी. तो हाफ पेपर पे आप अपने आप को डिफाइन कीजिए. नेचर से रिलेटेड मैं एक पर्वत अपने आप को मानती हूँ, या मैं अपने आप को एक बारिश की तरह, कुछ भी, पानी की बूंद. नेचर से अपने आप को डिफाइन कीजिए. The thing which you connect yourself with that particular thing, which is provided by us from Mother Nature. And then why? A single line answer. Why? If I am a butterfly, I do keep on. Yes. I also have a little butterfly. So why? And a small picture of it. Now you can sit here if you want the table, or if you are comfortable. Are you comfortable, or you need permission? So just a small picture of whatever you see. I was recognized. Ivy by school, or I was in Ivy by last year. It's a pleasure to recognize faces. The other school, DAV, I had gone to New Shimla. There also I recognized few teachers. Okay, just a single line. And you can use your marker, your pen, your whatever. So we'll have a few of the participations. What thing from nature you have? What have you driven your personality? Related yourself with what and why? So one table, one participant. Those who have done. Yes, ma'am. You have to be a little louder so that everybody can hear you. Good morning. My name is Vandana Nottingham, and I feel I'm like a river, and because I like to keep moving ahead and learning new things as I move ahead in my life. Good. Good. Oh, we should have. रिवर थोड़ी तेज बहेगा तो आप सोचो क्या होगा. Yes, please. आज वैसे भी गंगा माता दिन है, गंगा जी का पूजन आज के दिन माना जाता है. रिवर फ्लोज. Good morning, ma'am. My name is Deepti. My nickname is Daisy. Daisy. So I am a daisy flower, consider myself. In Hindi, it means Sadabahar. So I want to be always happy, always shining, and want to spread good fragrance everywhere. Just one participant. Anyone? Yes, please. I'm a leaf, and who prepare food for the plant, whole plant, and produce oxygen for the living things. Are you a science teacher? Yes, certainly. Please stand up. Good morning, ma'am. My name is Sangeeta. I am a butterfly. I love interacting with everything around me and spread colors of joy around me always. Many butterflies around. Yes, I think like a coconut and I won't be very strict and I want to show that I'm not, but actually inside I'm very emotional and I'm very soft inside. But outside like a coconut is very hard and inside kindly pay attention, please. Yes. I am leaf of a tree. I can provide, yes.
and I can protect, provide and nourish animals as well as provide shadow and air for people. Giver. Very good. Thank you very much. So I might not remember your names for the day, but I might remember what you said. Right. For the next thing, to begin with the arts integration CVP, let us all draw a flower. Everyone, a flower. On the half of it, draw a flower. Whatever and whichever way you, yes? Whichever way you know, whatever flower you know, just draw a simple flower. Done, ma'am. Yes, please share. Please come here. Yes. From anybody else, the one who has not participated in or not, yes, please come. Show us your flower. Anybody else? One participant more. Yes, please come. One more? Okay. Maybe come now. Okay. Science teacher. Okay. Please show your flowers to everyone. Other than the science teacher, what did you all observe? Their flowers are made the same. Sir, आप कौन से स्कूल से हो? आपके ड्राइंग टीचर कौन थे? तो आप कौन से स्कूल से पढ़े? हाँ जी मैम, आप कौन से स्कूल से पढ़े? I studied from Tara Hall and my teacher was Miss Hima Chatterjee, St. Thomas's School, and we did not have arts as such. So we did not you have learned it drawing. yours. Yes. Here we don't have like. But आपको BSc में सिखा दिया मुझे See, all the teachers are from different background. Even the school was not same. How come the flowers they have drawn are same? It's almost same, sir. आपके बहुत सारे similar. It is a question. How come the flowers are इनके teachers भी same नहीं थे, school भी same नहीं थे, और age group भी same नहीं थे, और कुछ ने तो पढ़ा भी नहीं तो भी वही flowers सीख पा जिनके teachers थे. Ma'am, it's the easiest one to answer. So when we continue with the CPP, many answers you will get from this very first question of mine. Thank you. Thank you so much, ma'am. आप क्या समझते हैं? क्या समझ में आपका previous knowledge क्या है arts integration से? When this word comes to you, what is your previous knowledge? Just write down one word in your diaries, in your copies, in your notebooks. Just one word that comes to your mind. Just one word. Arts integration से आप क्या समझते हैं? We have collective answers. Just one single word. Beauty. Creative expression. Creative. Joyful. See, if the word is repeated, if your word is same, please don't repeat it. So we say creative. Another word. Color, drawing, imaginative. Yes. That's the word. Joyful. Interesting. Learning by. Keep on writing these words, everybody. Keep making a list. Yes, this table. Fantasy. Arts integration fantasy. Like how do you relate the that? world of dreams for small children. Actually, I'm a kindergarten teacher. Yes. So for me, it's more of a fantasy, like taking children into a joyful world of dreams. For them, my 20 years experience tell me this about art integration for my children. Enriching. Learning becomes easy. Learning. Keep on writing all these new words. So arts integration. Innovation.
All these words can be given writing so that we jointly learn what it is all about. Arts integration has all of it. So imagine what words you have thrown, what words you have shared. All this should be in your teaching. That is why this pedagogy, CBSE has added this pedagogy, especially and made it compulsory for all the teachers for the practice. Do we do storytelling in our classes? Yes. Generally, what are the stories we are doing? Moral based. Moral based, everybody. Motivation. है ना, कुछ ethics सिखाना है, तो भी storytelling pedagogical tool is very important, right? तो हमारी generally कौन सी stories रहती हैं? Right from one teacher mentioned she's from kindergarten section. So which are the general stories? I'm for small children. Tales. Correct. Bedtime stories. Bedtime stories कौन सी? Fairy tales. Fairy tales and King Bruce. Somebody. कोशिश करते हो. Grandma stories. Animal related. So what the child said कि मेरा favorite time है storytelling time. और storytelling time में भी टीचर आती है, मैं हमेशा stories सुनाती है, तो मुझे वो सेक्शन बहुत अच्छा लगता है. I ask समझना. स्टोरी वॉज, एक व्यक्ति ने कुछ फ्रूट्स खरीदने थे और उसने एक शॉप पर गया और उसे कहा कि मैं 10 रुपीस का एक फ्रूट खरीदता हूँ, मुझे आप 100 फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्रूट दे दो. तो उसने जितने उसके ड्रैगन फ्रूट्स थे वो उसको सारे दे दिए. ओरिजिनली उसका प्राइस था 5 रुपीस फॉर एग्जाम्पल. 100 रुपीज़ का शायद एक पीस है, चलो 100 लेते हैं. 100 रुपीज़ का एक पीस है और वो उसने कहा कि मैं आपको 105 रुपए दूंगा और सारे ड्रैगन फ्रूट मुझे आप दे दो, और ये चला. द मैन वॉज वेरी हैप्पी. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, द मैन केम अगेन. ही आस्क्ड फॉर द सेम फ्रूट. तो इसके पास उतने फ्रूट नहीं थे. ये पास वाली दुकान पे गया, उसको पूछा कि तुम्हारे पास कितने, क्या 100 होंगे ड्रैगन फ्रूट? उसने बोला हाँ. then he came back to the buyer and he says सर आप मुझे कितने पैसे दोगे? बायर से ठीक है मैं तुमको 110 रुपए दूंगा. फिर भी 5 रुपए का क्या था उसको, कुछ पैसे उसने दूसरी दुकान वाले को दिए होंगे और 100 ड्रैगन फ्रूट्स उसने उठा लिए. ठीक है, अभी बात सारी जगह पे फैल गई कि एक व्यक्ति आता है, वो इतने फ्रूट खरीदता है और सारे उसको ड्रैगन फ्रूट पसंद है और वो सारे फ्रूट्स खरीद के ले जाता है. ठीक है, और एक जगह कुछ उनकी पार्टीज चल रही हैं तो उसमें उनको रिक्वायर्ड है ये फ्रूट. ठीक है, अब इन दोनों शॉपकीपर्स को पता है कि ये फ्रूट की डिमांड है, ये फ्रूट उसको चाहिए. नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज द मैन अगेन कम्स एंड देन ही सेज कि अब मुझे 100 पीस मैंने तुमसे लिए थे, अब मुझे 200 पीस ड्रैगन फ्रूट के इकट्ठा चाहिए और मैं आपको इसके 115 रुपए दूंगा. अब इन दोनों के पास थे नहीं थे ना, बेच चुके थे सारे. एंड दे थॉट कि ये तो बड़े प्रॉफिट का मामला है और इसमें तो बहुत मार्जिन भी है, तो हम कहीं और से जाके खरीद के लेके आते. इज एवरीबडी गेटिंग द स्टोरी? दे वेंट टू, दे इंक्वायर्ड कि कहाँ मिलेंगे इतने ड्रैगन फ्रूट. वो पास में एक थोड़ी सी से 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे they went and they bought 200 ड्रैगन फ्रूट्स फॉर 118 रुपए. ठीक है, अब इनको पता था ये बंदा है, रेट पूछा. उसने कहा कि मैं आपको 120 रुपए एक फ्रूट के दूंगा. ठीक है, 120 रुपए एक फ्रूट के दूंगा, मुझे 200 पीस चाहिए. स्टोरी समझ में आ गई? ये दोनों जाते हैं और तीसरी जगह से जाके खरीद के, ये बंदा प्रॉमिस करके गया था, बट दिस बायर नेवर टर्न्ड बैक. और ये दोनों शॉपकीपर्स फ्रूट लेकर बैठे हैं. ठीक है, आई होप कुछ अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स को टीचर्स को समझ में आ गया होगा. तो टीचर उनको सिखा रही थी डिमांड और डिमांड एंड सप्लाई का रूल सिखा रही थी, और उसको दूसरा मैथमेटिक्स का क्या सिखा रही थी?
और हम अपने बच्चों को क्या सुना रहे? दादी नानी की कहानी सुन लो। कहानी इसलिए सुनो कि तुमको सोना है इसके बाद। कि मेरी टीचर ने मुझे डिमांड एंड सप्लाई और लालच, ग्रीड भी बीच में एक फैक्टर है, उसने मुझे स्टोरी से ये इतना बड़ा डिफिकल्ट सा लॉ मुझे सिखा दिया, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा ये चीज। प्रॉफिट एंड लॉस मुझे सिखा दिया, मैं नेवर गोइंग टू फॉरगेट। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे क्लासरूम में? आज तुम्हें सुनाते हैं नानी दादी की कहानी सुनो। So teachers, we really need to get ourselves upgraded and use all these tools for हमको creative होना है। ये CBPs इसीलिए लग रहे हैं ताकि ये सारे tools को हम यूज करना सीखें, थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ और ज्यादा क्रिएटिव हो जाए। और हम सोचे अपने चैप्टर, अपना लेसन डिलीवर करने से पहले हम सोचे आज मेरा टाइटल, आज मेरा टॉपिक क्या है। आई होप एवरीबडी एंजॉयड दिस। जिसने तो हम डीपली सीखेंगे आज आर्ट्स एज करिकुलम। आर्ट्स इंटीग्रेटेड हमारा क्यों जरूरी है स्कूल्स में, तारे जमीन उसने उस टीचर ने उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। जब भी आप अपना क्लास शुरू करें, जब भी आप क्लास में जाए, जरूरी नहीं है कि रोज आप पढ़ाएं। For some time, for few minutes, you must take it out for some of the other activities so that you inculcate a kind of interest. Somebody said interest as well, है ना? So that it creates interest. बच्चे का पूरा इंटरेस्ट उसके आपके क्लासरूम में हो, वो समझे कि मेरी टीचर सिर्फ मुझे पढ़ा ही नहीं रही है ना? And it is not that कि आपको छोटी क्लासेस में करना है, सीनियर सेक्शन PGTs can also do think of some of the other activity which gets them back to the classroom and have the interest. So, can we have the video? How many of you knows if you're happy and you know? Everybody? So we'll have a small part of dance also. Awesome. If you're happy and you know it, if you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, if you really want to show it, and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, faster. If you're happy and you know it, if you really want to show it, if you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, nod your happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, if you really want to show it, if you're happy and you know it, nod your head. If you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it, if you really want to show it, if you're happy and you know it, shake your legs. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, snap your fingers. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, put your hands. मैम शंकर जी का एक वर्कशॉप की बात है, आप एक्सपेक्ट तो बहुत कुछ करते हैं। किसी को ये महसूस नहीं हो कि मैं हवा भी हो सकती हूँ। One of the participants can stand and smile. So the objective for the training program, and everybody has written one word, your expression. Anybody can stand up and participate. Develop understanding of arts as a pedagogical tool and its impact on the holistic learning and development of every child. Yes, this we have done by seeing that there are so many pedagogical tools and it could be used and can be utilized for enhancing the learning. Somebody else. Quickly. Anybody else? Ma'am, you see the second point?
I'm familiarized with art experiences, different art forms as medium as exploring creative expression. Creative expressions. तो अभी जो 2-3 एक्टिविटीज किया, मॉर्निंग से एक्टिविटीज हो रही थी, ऑल लाइक दैट, डिड इट क्रिएट सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन योर माइंड कि आज कुछ अलग होने वाला है? बाकी सीबीपी वाला नहीं है जिसमें एनसीएफ पढ़ाते हैं और हम बिल्कुल सुनते सुनते थक जाते हैं. नेक्स्ट वन, anybody, please have an active participation. Enhance skill of planning and organizing age-appropriate arts-integrated learning experiences to make learning of different subjects appeal. तो हमें लगता है कि कहानियाँ सुनाना, नाचना गाना, कुछ और इंटीग्रेट करना छोटे बच्चों का काम है. वी आर पीजीटीज और हम 11-12 पढ़ा रहे हैं तो हम ये सब नहीं कर सकते. वी हैव टू फिनिश द सिलेबस. एक ये प्रेशर तो सब पे रहता है, स्पेशली 10th बोर्ड क्लासेस के लिए ना, 10th and 12. बट आर वी रेडी टू लर्न समथिंग? पहले टीचर को मेंटली प्रिपेयर होना है कि मैं ये टूल्स यूज करूंगी तो ही टीचर यूज कर पाएगी. अगर आप इन सबको सोचेंगे कि ये मेरे लिए एक बर्डन है और ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है और ये मेरा सिलेबस फिनिश नहीं होने देगा, दिस थॉट लाइन इज एक्चुअली रॉन्ग. हम पीजीटीज को भी सीखना है कि हम तभी तो क्लास में कुछ और करवा सकते हैं ताकि बच्चे का अटेंशन ग्रैब कर सको, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट कर सको, स्पेशली फॉर द साइंस एंड अकाउंटेंसी, ऑल दीज सब्जेक्ट्स. बट लाइक आई टोल्ड यू वन स्टोरी, अकाउंटेंसी वाला टीचर अपने आप सोच सकता है कि मैं क्या कुछ सिखाऊं इसको, कोई एक प्रिंसिपल से लेके मैं अपनी स्टोरी क्रिएट करूं, so that the child can have the conceptual understanding of the type topic we are going to discuss about. Are you all with me? Yes. Yes, ma'am. So today these are the sessions we are going to go through. First session is arts in education. I hope by this time everybody might be the research says about it. First point is kinesthetic activities. ये kinesthetic learners कौन से होते हैं? Can anybody define? उनमें difference क्या रहता है? kinesthetic learner में difference क्या रहता है? Very good point. Hands. हाँ जी, और Very energetic. वो ज़्यादा क्या हम हाइपर एक्टिव बच्चों को kinesthetic learner बोल सकते हैं? Not all. No. So what is one line or one word difference in your understanding? Curious. कौन? Kinesthetic learners? Yes, sir. From this table, any response? Ma'am, what I feel like kinesthetic learner needs some physical activity, but it's not necessary that slow learner needs this any physical activity. Kinesthetic learner बड़े sharp minded होते हैं, पर वो इतने hyper होते हैं कि उन्हें कुछ चाहिए. वो आपके ये जो एक ट्रेडिशनल काम है उसमें बहुत बोर हो जाएंगे वो. आप उस बच्चे को क्लास में कैसे उसकी एनर्जी को इम्बाइब करेंगे, क्लासरूम में आप क्या करेंगे, ये चैलेंज टीचर के लिए है. इन सिंस आई हैव डन द कंपैरेटिव स्टडीज, हमारी एजुकेशन का क्या एम लगता है, हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? कैन एनीवन शेयर? हम चैनलाइजिंग द एनर्जी, ठीक है, चैनलाइजिंग द एनर्जी. बट हम क्यों शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? इंडिया के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन का क्या पर्पस है? To earn well. I only have two. So one by one. Responsible citizens prepare them for the future. Prepare them for the future so that they can earn. Ma'am, they can earn bread butter. Yes. Educate them learn human values. ये प्रेशर बॉयज पे बहुत होता है ना? शारीरिक बौद्धिक और उसका शारीरिक विकास हो जाए, बौद्धिक विकास भी हो जाएगा, ओवरऑल सारा ज्यादा होलिस्टिक भी हो जाएगा. तो हम पढ़ाई इन सब कारणों से करवा रहे हैं, ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, ओवरऑल होलिस्टिक. ना तो बच्चों को कमाने के लिए पढ़ाना है, ना उनके बौद्धिक विकास के लिए, ना उनको शारीरिक, ये सारी चीजें इंक्लूसिव है. लेकिन उनका पर्पस क्या है एजुकेशन देने का, शिक्षा देने का उनका पर्पस क्या है? They want, the country wants
people to produce happy citizens. Can we clap for this talk? It's amazing. Shall we all analyze, introspect करें कि हम बच्चों को पढ़ाते ही क्यों हैं? हम उनको ये सारी शिक्षा, इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतनी एक्टिविटीज करवा क्यों रहे हैं? और हमारे ऑब्वियस से रिस्पॉन्स थे कि हम कमा सके, हम अच्छे सिटीजन बन सके। तो मेरा सवाल है कि अगर हम पढ़ाई नहीं करें, कोई अनपढ़ है तो क्या वो अच्छा सिटीजन बन सकता है? पढ़ाई की जरूरत ही क्या है? That's the question. हाँ जी, हम नॉलेज नहीं के अच्छा सिटीजन बनाते हैं। ऐसा है ना, यही हमारा पर्पस रहता है। देखिए यही डिफरेंस है, जितना भी पढ़े वहाँ तो 10वीं 12वीं वाला ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना कि 12th तक भी तुमने पढ़ लिया तो तुम अनपढ़ ही माने जाओगे, क्योंकि यहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएट भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, PhD भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं हमारे जैसे। तो देखिए मैं आई वाज वेरी शॉक्ड इन माय स्कूल मैम, एक पेरेंट आए वो पोस्टल सर्विसेज में है, तो वो मुझसे शेयर कर रहे थे अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात। डाक सेवक जो होते हैं उसकी एलिजिबिलिटी 10 है, सिर्फ 10वीं पास वो बच्चा चाहिए जो डाक बांट सके गांव-गांव में जाकर, और उसमें पहला फैक्टर कंपटीशन इतना बढ़िया कि 98 99 में सिमट जाते मेरिट। फिर वो कह रही कि मैं शौक ये था कि वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, ट्रेंड बच्चे आके इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और काम क्या है कि जाके आपको सिर्फ डाक बांटना है। हमारा पोस्टल कितना ही चलता है वो सब आप जानते ही हैं। अब तो सर्विसेज बहुत हो गई, ऑनलाइन सर्विसेज बहुत हो गई जो हमें घर पर ही सब कुछ दे देते हैं। आके तो ब्लिंकिट हो गया कि बस आके चपको और आपके पास सामान आ। तो आप सोचिए कि हम 10वीं 12वीं तक के बच्चे को तो अनपढ़ ही मान रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट आकर इस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। तो हमारा पर्पस ये वो रहा ही नहीं शिक्षा का जो एक्चुअली होना चाहिए। इतना अनरेस्ट है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना गैप है हमारे एक मिडिल क्लास में और एक लोअर क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, रिच तो छोड़ ही दो आप, है ना। तो हमारा पर्पस शिक्षा का क्या होना चाहिए, ये एक विचार करने योग्य आप लोगों के लिए भी एक काम है कि आप क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ DU में क्योंकि ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे, ये आंसर हो सकता है, बाकी प्राइवेट स्कूल शायद ना दे, ये आंसर हो सकता है क्योंकि मुझे DU में क्यों जाना है। इन सब बातों को छोड़ के क्या हम गिविंग कर सकते हैं समाज के लिए? कैन वी गिव समथिंग? एक थॉट भी है ना, राइट ब्रदर्स के पास एक थॉट ही आया था, सारे इन्वेंशंस जो उनके पास एक थॉट ही आया था कि चिड़िया उड़ रही है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते, है ना। और उन दोनों भाइयों ने फर्स्ट यू नो द स्टोरी, है ना, व्याख्यास करवाते हैं जो आपकी गुड प्रैक्टिसेस में है। आई होप जस्ट वेट अ मिनट, आई होप यू हैव गुड प्रैक्टिसेस इन द स्कूल। I teach English, and then our subject, what we do is we motivate the students to work together, preparing the case study. Excuse me, sir, Subject special I'm coming to, that how to interview people, how to ask different type of questions, and finally how to club all those responses together to come to a conclusion that group how different people react to different situations. So all the people participate in that, they all become interviewers, so as to know that how to interview and finally how to come to a conclusion. And some of them have become interviewees and some of them have become interviewers. Yes, they can be interviewees or they can research on a different type of a group. जी, तो आजकल हमारी लैंग्वेज भी बदल गई है ना, इसको हम क्या करवा रहे हैं, है ना, कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके अपने सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी में तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, और कुछ नहीं तो बच्चे छोटे छोटे वो ताना बाना बना के कुछ दो लाइंस, है ना, कुछ भी राइमिंग वर्ड्स। सो ये हमारे अंदर एक न्यूरो इट इज़ कॉल्ड न्यूरो साइंस, है ना, जो कि हम अपने कोर्स साइकिल में भी सीखते हैं। फर्स्ट लेवल क्या होता है, रिमेंबर, सेकेंड इज बट लास्ट वन इज क्रिएटिव। उसमें क्या हो रहा है, जब हम पहली बार फॉर एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मैं आपके मैम को पहली बार जब मिली तो हम मिले नहीं, पर हमारी फोन पे बहुत बात हुई। मेरे अंदर एक कनेक्शन सर्किट मेरे अंदर क्रिएट हो गया कि मिसेस अनुपम नाम की एक प्रिंसिपल है और वो आती है और मैंने
उनसे बात की, तो ये चीज़ मेरी मेमोरी में चला गया है ना। फर्स्ट दूसरी बार जब मैंने इनको फेस टू फेस देखा, अब मेरी मेमोरी ने ये सर्किट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और फिर जब मैं इनको कहीं भीड़ में मिलूंगी तो मैं पहचान लूंगी कि ये मिसेस अनुपम है ना। ये मेरी मेमोरी ने इतना रिसीव कर लिया। अगर अब मुझे इनसे कह लीजिए पहली या दूसरी मुलाकात में मेरी इनसे कुछ प्यार हो गया, प्यारी बहुत प्यारी है, मुझे इनसे बहुत प्यार हो गया, तो एक कनेक्शन मेरे अंदर सर्किट क्रिएट हुआ जिसने मेरी मेमोरी को क्या किया, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग दी थी कि बहुत प्यारी है और मुझे इनसे बहुत, वाइस वर्सा भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, तो झगड़े वाले को तो बहुत याद रखते हैं, है ना। झगड़े वाले को नहीं भूलते, प्यार वाले को फिर भी भूल जाते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर टू टॉक अबाउट इट ऑन लाइटर साइड, जब प्यूबर्टी एज में हमारे क्रश हो जाते हैं, है ना, तो वो जो सर्किट बनता है ना, भूलते ही नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्किट होता है वो। Am I right on that? Yes. बच्चों का, because we are dealing with adolescent children also. ये adolescent education में आप लोगों को जरूर ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए जो उनके बेनिफिट के लिए, जो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो ये कनेक्शंस हैं। अगर आप बच्चे को अपना चैप्टर पढ़ाते हुए कुछ ऐसी चीज दे देंगे जो उसके अंदर एक न्यू सर्किट क्रिएट कर देगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा। Never going to forget that point, never going to forget that concept, या वो चैप्टर या पोएट्री या हिंदी से रिलेटेड आप कुछ भी, अगर आप इस बारे में कामयाब हो गए, उस बच्चे के अंदर नया न्यूरो सर्किट आपने क्रिएट कर दिया, वो चीज़ वो बच्चा कभी भी नहीं। हम क्यों अपने क्रश नहीं भूले, है ना, क्योंकि उस समय एक नया सर्किट फॉर्म हुआ था। देखो आंसर आप सबके पास है। Was something that I'm going to follow is one purpose, one objective. That is to, why am I teaching? Is to make sure that children are happy. If they are happy, then definitely they are going to give back to the society. So that is one point that really stuck with me, and I'm going to follow that. And of course, I also got to know that how important it is to integrate art to make it more interesting. Thank you, ma'am. Enhanced curriculum, then art as curriculum, it must getting short of time. Please decode. Then after any guesses? Repetition. एक बात बता, बच्चे कभी भी गलत आंसर देना, उनको आपने डिस्करेज नहीं करना। नहीं करते मतलब repetition. Okay. Anybody from this section, sir? Too many. Very good. To get married meaning? यही है ना? Marry. हाँ जी? Marry कौन? Merry Christmas. फटाफट से मैम का सेशन चलो कुछ मैरी करो नहीं. No writing. I shouldn't be. Yes, please scroll. Stop. So please close. Kindly write down whatever you will find. Microwave on this table.
क्योंकि डिस्कशन जो ब्रेन में हमारा ब्रेन बहुत स्ट्रक्चर्ड चीजें अंडरस्टैंड कर रहा है ना। क्या कारण है कि एक टीचर पढ़ाती है तो उसके बच्चों के नंबर बड़े अच्छे आते हैं और दूसरी टीचर वही क्लास ले रही है तो वो बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते। सो कैन वी हैव द अदर स्लाइड फॉर दैट? नीचे क्या आपको कुछ गेस वर्क भी चलेगा है ना। देन स्टेशनरी आइटम्स, देन क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज एंड लाइट एंड स्मोक। तो आपको याद रहेगा अगर आप स्ट्रक्चर्ड है ना और ब्रेन को सबसे ज्यादा इजीली एक्सेप्टेबल और मेमोरी में रहने वाली चीज क्या होती है? पिक्चर्स, विजुअल्स, फोटोज, है ना। सेकंड थिंग, आप सारे चैप्टर को विजुअल तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, है ना। चाहे आप उनको ब्रीफ में हमारे ये एक्स्ट्रा मार्क्स है जो भी है वो दे देते हैं कि ब्रीफ हो गया पूरे चैप्टर। बट इफ वी आर गिविंग देम अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, ये फॉलो में बेटा इसमें 10 तुम्हारे पॉइंट्स होने चाहिए और तुम खुद भी देखो कि कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। चाइल्ड की मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग दोनों काम करें, है ना। चाइल्ड को समझ में आ जाएगा कि मेरी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मेरी टीचर को कैसा आंसर, है ना, कौन सा आंसर कैसे नंबर लेके आता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर हमको तो नंबर देखना ही है उसके, है ना। वो तो हम डिनाई कर नहीं सकते कि हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी जो लड़की रिच होती है उसको रिचा करती जितनी बुद्धि है उतनी ही बात करेगा। Later on I realized no. So he translated chosen 51 rituals from Sanskrit to English. The name of the book is Success Motivating Vedic Gurus, from which I am reading out for you. तो उसमें आप गुरुओं के लिए क्या कहा गया है, राइट। एक गुरु का स्थान जो है सबसे ऊपर है, as I shared with you. So what is Rigved saying for you? Learned preachers. आप सबको ज्ञानी जन कहा गया है। You are learned and you are preachers. आप प्रचार कर रहे हैं, राइट। उस ज्ञान को आप अपने अंदर समेट के नहीं बैठे। ज्ञान एक ऐसा खजाना है जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। So learned preachers should deliver. Should is a modal. How should you deliver your sermons? Noble preachers should deliver noble, inspiring sermons. Sermons noun है, abstract noun है, उसके दो adjectives लगाए हैं। पहला है noble. Noble का मतलब क्या होता है? Noble शब्द से क्या समझते हैं? सर मैंने 7th क्लास में संस्कृत पढ़ानी शुरू की थी गरीब बच्चों को रिक्शा में बैठ के। 6th क्लास में I was failing in Sanskrit and 7th क्लास में आते आते मेरे दिमाग की गति चल गई और मेरे नंबर। Please write down. Can learn. A child under the age of 5 can learn 21 languages simultaneously at the same time. और आज मेरा बच्चा मातृभाषा हिंदी बोलने में शर्म महसूस करता है, उस मातृ को वो मातृ उच्चारण करता है। इंग्लिश में तो पढ़ाया जाता है जिसमें उसे कुछ समझ नहीं आता। दुर्भाग्य ये है कि वो न नकली अंग्रेज बन सके आए और हम ना सच्चे हिंदुस्तानी। तो मेरे संस्कृत का उच्चारण बहुत ही भाव रहित होने वाला है। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, भाव सहित नहीं बोला। तो मेरा उच्चारण होगा वो मैं सिर्फ दिखावे के लिए करूंगी, क्योंकि जब तक किसी चीज में भावना नहीं आती ना वो हृदय तक नहीं पहुंचती है। नीरस भाषा, नीरस भाषा कभी आपके हृदय तक पहुंचने वाली। तो मैं सिंधवः सत्यम ततना सूर्यो वित्तम मे यस्यारूढस्। तो ये मैं सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ रही हूँ, इसका मुझे भाव नहीं है महसूस होता। एंड आई फील अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ। ये जननी है सारी भाषाओं की। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल के कौन से मंडल? /10 /12 इस तरह से कुछ ठीक है। हाँ तो मंडल ये हो गया, आपका सूक्त हो गया और मंत्र हो गया। Can we clap for sir? Here we have someone who knows
दिन में के 10 मंडल है, मुझे तो ये बात आपसे सीखने को मिली। अरे नहीं मैम, वो तो लिखा हुआ मेरे कैसे आप सर अगर हम विनम्र रहेंगे तो हम सब सीखेंगे, अगर हम विनम्र नहीं रहेंगे तो हम नहीं सीखेंगे। तो नोबल शब्द का मतलब मुझे बताओ, नोबल का मतलब क्या होता है? I think इसका मतलब है प्योर सोल। Noble means a pure soul. Can we clap for ma'am? She got it bang on. Noble means to commit well. Very good something. And second adjective was inspiring. Inspiring से क्या समझते हैं? जो प्रेरित बीएड किया था, बीएड में एक लाइन पढ़ी होगी आपने विलियम आर्थर वॉट सर की, An ordinary teacher tells. मैंने सिलेबस करा दिया, मेरा काम खत्म हो गया। A good teacher explains. A better teacher demonstrates, but the best teacher inspires. ये लिखो विलियम आर्थर वॉट, आज यही होने वाला है इस क्लास में। An ordinary teacher tells, English teacher इसी की मदद से आप verbs और adjectives भी बता सकते हैं। An ordinary teacher tells. Please make a box around the word ordinary and around the word tells. Right? First line क्या लिखवाएगी बोलिए सब लोग। हमारे देश का नेशनल एवरेज चल रहा है दोस्तों, यानी कि सारी जो खीर है उसके ऊपर मिट्टी पड़ रही है। उसी तरह जब तक बच्चा इंस्पायर्ड नहीं होएगा तब तक। और माय चाइल्ड गोज टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुझे सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल अपनी कॉपी में लिखो। इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब क्या है? What do you understand by the term? इंग्लिश में है सर, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड इधर कर दें, घर में इंग्लिश बोली है। एक पंजाबी का बच्चा पहला अगर मान के मां पानी नहीं, यूपी बिहार का चाइल्ड से मां जल दीजिए। Now who has speak like this? Who has taught the child? Mother. एक उदाहरण लो, पेन रखो सब लोग, कॉपीज रखो, पेन रखो, कंधा सीधा, गर्दन सीधी, अपना हाथ हवा में उठाओ, इंडेक्स फिंगर, इसको पेन बना के अपना नाम लिखो हवा में, आंखें बंद, चीटिंग नहीं करना बेटा। ऑलराइट, जिन्होंने लिखी है वो नाम लिखो कौन सा आपको, आपने श्योर ऋतिक रोशन का नाम नहीं लिखा, हम सबकी क्रश ऐश्वर्या राय, हम सबकी क्रश। कैसे पता कि हमने अपना ही नाम लिखा है? मैम क्या बात कर रहे हो? लाइफ में करोड़ों बार नाम लिख चुकी हो अपना, आज थोड़ा लिखा पहली बार, फिर आया एक्सपीरियंस। तो वो मेमोरी जो थी वो सिर्फ आपके माइंड में ही नहीं है, वो आपके मसल्स में भी आ चुकी है। आज आईपीएल चल रहा है, उस क्रिकेटर को, उस बॉलर को ही क्यों लिया है? ऐसे बॉल करता है बैट्समैन को आउट, उसकी उंगलियां देखो फट चुकी है, पत्थर की जैसी उंगलियां होंगी बैट्समैन। They have not bowled for one time, मुझे तो बॉल पकड़ सुनता हुआ चला आ रहा। इस भाषा में वो पैदा हुआ, अम्मा तन्नी, क्या सब तन्नी तो मुझे पता नहीं तन्नी माने उस वर्ड के साथ उसका एसोसिएशन हो चुका। यूज करता है धन धन 10वें गुरु महाराज श्री गुरु गोविंद महाराज जी कहते थे शब्द ही गुरु है। लाइन लिखो अपने बच्चों को दीजिएगा, शब्द ही गुरु है। आप गुरु के स्थान पे बैठे हैं दोस्तों, और उन्होंने किसको गुरु माना? शब्द। शब्द। क्या मेरा बच्चा शब्द के साथ एसोसिएट करता है? जब बच्चा एक वर्ड सुनता है तो उसके मन में क्या फीलिंग आती है? आपके नीचे मैम कैन बी केयर फॉर मैम के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का कितना जबरदस्त, आई एम अलाउड टू फील, आई हैव फ्रीडम टू फील। उसको देखिएगा, उसकी फोटो खींच के ले जाइएगा। तो मेरा बच्चा शब्द सुनता है, क्या वो फील करता है? एक 2 साल के बच्चे को मैं समापुत्र में गुरदास मान जी का एक गाना पे सुने, वो नच टपके को सुनाएगा, नेटवर्क्स एसेंशियल फॉर लर्निंग। ठीक है, उसके बाद वो गाने उसका सब आगे तब ये कैसे सीख टू लर्निंग, 3 बैरियर्स टू लर्निंग। जब तक तीसरा गेट का खुलना सिस्टम नहीं होगा, राइट? फर्स्ट लिखिए रिकॉग्निशन नेटवर्क। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन, then TIC मैजिक बैरियर नेटवर्क, COGN। कभी किसी को गलत नहीं कहा लाइफ में, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपने गलत। आई ऑलवेज सेड एक्सीलेंट एफर्ट,
कम लेट्स डू वैल्यू एडिशन, ये लिख लो। ये आपको जिंदगी में वो दुआएं दिलवाएगा जो आपकी सैलरी से या किसी भी चीज से ऊपर होगी। एक्सेलेंट एक्सेलेंट अटेम्प्ट, एक्सेलेंट एफर्ट। क्यों लोग जल्दी? बिकॉज ऑफ सो मेनी। हमारे सुबह 7-4 बजे मैक्सिमम डेथ होती है, सुनते सुनते चले गए, सालों पता भी नहीं चला। इज देयर एनी भूत प्रेत आत्मा एट दैट टाइम? व्हाट हैपेंस? ब्रह्म मुहूर्त बोला हिंदुओं ने, अमृत वेला बोला सिखों ने। उस वक्त क्या होता है? वाई? बिकॉज दिस प्योर साइंस, इसको हम लोग एक्चुअली समझ नहीं पाए। प्राण शक्ति कमजोर होती है सबसे ज्यादा उस समय से। उस वक्त क्यों कमजोर होती? चार सर ने बिल्कुल बढ़िया बोला, क्लैपिंग फॉर सर। सर ने बिल्कुल बढ़िया बोला, हमारी शारीरिक हालत क्यों कमजोर होती है? प्राण शक्ति कमजोर होती सबसे ज्यादा। प्राण देखने नहीं पे समय होता है 3 से लेकर 4 बजे तक, और जो उससे पहले का समय होता है वो हमारी निद्रा पूरी हो जाती है, और जगने का समय होता है जो सोता रहता है, तो उसकी प्राण शक्ति बहुत कमजोर होती है, उसमें सबकी होती है, और उस समय जीवन का अंत होने का चांस ज्यादा होता है। बिल्कुल सर के लिए क्लैपिंग सर ने परसेंटेज ऑफ कोर्टिसोल इन योर बॉडी इज हाई। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, साइंस टीचर्स, जो कोर्टिसोल है आपकी बॉडी में उस वक्त सबसे ज्यादा, और उस वक्त अगर कोई सोया रहता है, जब भरत जब वापस आते हैं, उनको पता चलता है उनकी मदर ने क्या कांड किया है कि राम जी को जंगल है, तो ही गोज टू कौशल्या माता एंड ही सेज, अगर इस षड्यंत्र में मेरा लेश मात्र भी इसमें अगर योगदान है तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्योदय के बाद सोने वाले को लगे। वाल्मीकि रामायण में ये रामायण की बात है। क्लैपिंग फॉर दिस। इसी बुक में काश में लेकर आती 51 में से 4 ऋचाएं मॉर्निंग, और रात को जब 2 बजे कोई व्हाट्सएप बंद करके सोएगा वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, कोई चांस नहीं होता। चलिए एक गाना गाते हैं, बहुत खाली घंटा हमारा। मैं नीचे आ रही हूँ, इस पे बात। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, टिंग टिंग टिंग। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, टिंग 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 टिंग। पापा नहीं है नानी सी दीदी, दीदी के साथ है सारे, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। पर ये कौन है क्लैपिंग कर? ये गाना कब सुना था? क्लैपिंग। अच्छा, ये गाना जब सुना था उस उम्र में जो मैथ्स के फॉर्मूले पढ़े थे, हिस्ट्री के फैक्ट्स और फिगर्स पढ़े थे, केमिस्ट्री के इक्वेशंस पढ़ी थी, वो सब याद है? मैम बड़ी मुश्किल से घोटा मार के पास हुई। बेइज्जती मत करो ना मैम। मैम आपको याद है क्या? मेरे से पूछो ना कि मुझे याद है, मैं आपकी खिंचाई कर रही हूँ। नहीं यार, हम सब सेम नाव में हैं, तो मेरे लिए ज्यादा याद नहीं। ये मत सोचो कि मुझे सीबीएसई ने यहाँ पे भेज दिया तो कोई मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अच्छा बताओ क्यों नहीं था? ये गाना सबने दिल खोल के गाया। 440 वोट की बत्ती जगी, बजे की नहीं बजी, आप जगी। ये बिटिया बहुत बुरा गिरी, फिर भी शी स्माइलिंग, गिव हर अ बिग राउंड ऑफ हमें ये गीत इसलिए आता है क्योंकि इसके साथ खुशी एसोसिएट है। टीचर्स डे, विच टीचर मेक्स यू वीक? और श्रद्धा से सिर्फ किसके आगे झुकता है? वो पैसे से नहीं खरीदा गया। एंड रिस्पेक्ट बिगिंस रिस्पेक्ट। अब लिखो, people will even forget your words. God bless you. People will even forget your words. Always remember is how you make them feel. आपने उनको एहसास क्या करवाया, राइट? अब आप बताओ मैंने क्या लिख पाएंगे? ये माया अंजलू जी की लाइन है, मेरी लाइन नहीं। बताइए क्या लिखा गया? गाने में 4 कलाएं लिखी गई, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। कितनी कलाएं इकट्ठी जरूरी? एंड स्पीकिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग। इस गाने में आपको क्या सिखाया जा रहा था?
आर्किटेक्चर की भाषा से ही शब्द है। जब कोई बिल्डिंग बनती है, कोई इमारत बनती है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? खुदाई हुई, फिर नींव फाउंडेशन डाले गए, मलबा भरा गया, फिर ऊपर तक आए, बाहर दरवाजे का फ्रेम रखा, फिर ईंटें रखी, फिर खिड़की का फ्रेम रखा, फिर बाहर ऐसे खंबा रखा, फिर ऐसे रखा, फिर उस पर एंगल पड़ा, फिर उस पर लड्डू और समोसे मिले। मैम पहले भी लड्डू समोसे मिलते हैं, वो नहीं खिलाया आपने, है ना? तो यानी कि दो शब्द को पहले आउटसाइड सपोर्ट, ये बिल्डिंग कोई अंदर से जादू से नहीं खड़ी हो रही, मार्बल पिक्चर्स की तरफ से अपने आप खड़ी हो रही, नहीं, इसको बाहर से सपोर्ट मिल गया। आर्किटेक्चर की भाषा में स्कैफोल्डिंग टेक्निक का मतलब है दोस्तों आउटसाइड। तो हम लोग माली ने खीरा रखा थाली ले में तुम फूल उगाना, घर सुनाए कुत्ते खाना, वो के पाध आना, चम्मच से हम खाना खाते, खाता लेकर धूप में खाते, राजधानी में है बहता। उसे ऊन है लाई रानी, बुंदो मेरी टोपी नानी, ऐसे ऐसे अति सुंदर। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। देख लीजिए आपके सामने संगीत की ताकत आ रही है, राइट? संगीत की ताकत आपके सामने। एयरफोर्स स्कूल में मैं प्रिंसिपल पढ़ी, चेन्नई की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। I was interviewed by 5 Air Force officers, 3 Gents officers and 2 Navy officers. I was asked very honestly, ma'am, they hate Hindi here. How will you teach Hindi? I said, sir, ma'am, आप प्लीज मेरे साथ क्लैपिंग करेंगे, हम एक गाना गाएंगे। उर्वशी अफसरों से क्लैपिंग करवाओगे? ऐसे जी, अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी हृदय तक लेके जाऊँ, फिर वही बात अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, जब तक कोई चीज़ हृदय तक नहीं पहुँचती तब तक हम सिर्फ एक दूसरे के साथ टाइम पास करेंगे। तो आपने ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा होगा जिसमें इंटरव्यूज भी क्लैपिंग कर रहे हैं और मैं इंटरव्यू भी क्लैपिंग कर रही हूँ। ये 12 खड़ी है, 12 मात्राएं हैं। मैम ये मात्रा में मेरा बेटा मार खाता है। अभी एक चित्तारा यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मेरे घर में आके हुई है, मैम इसकी हिंदी पकड़ लेस देन 40%। आज हमारे बच्चों की हालत हिंदी में इंग्लिश से भी ज्यादा, that's a tragedy। फॉरेन कंट्रीज के मिनिस्टर्स आते हैं, वो अपने ट्रांसलेटर साथ लेकर आते हैं, वो अपनी मातृभाषा में बोलते, लेकिन हम अंग्रेजी में बोलते। पहले प्रधानमंत्री हमारे 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में स्पीच दी थी। कैन वी क्लैप फॉर हिम? हमने शर्म को बोलने में मुझे कभी समझ नहीं आता कि जो हिंदी में बोले हुए, हाँ मैम आप इंग्लिश वाले हो, ये हो इंग्लैंड से, व्हाट नॉनसेंस है। भाषा का कोई वजूद नहीं होता, ये तो हमने जोड़ी हुई है और इन अंग्रेजों ने आज तक हमें गुलाम बना दिया। हमारे देश में इंग्लिश के और हिंदी के पास मार्क्स क्या है? इंग्लैंड में कितने हैं? इंग्लैंड में इंग्लिश के पास मार्क्स क्या है? 66%। उन्होंने हमें क्या आंका? समझते हो हमें क्या आंका? क्लर्क बनाना है, और आज तक हम उनके गुलाम हैं। वो एलिफेंट चेन्स की कहानी सुनी हुई है ना, वो एलिफेंट चेन्स हमारे माइंड के पास आ गई। बेटे साइंस मैथ्स पढ़ ले, लाइफ सेट हो जाएगी। इंग्लिश हिंदी में तो 32% मार्क्स देगी, टीचर देगी 2-4%। और वही बच्चा जब इंटरव्यूज के लिए जब मुझे जज बना के बुलाते हैं दोस्तों, मुझे रोना आता है कि इसके माँ बाप ने 10 लाख रुपए इसके बीटेक के खर्चा किया। अब ये घर में लड़का है, वो लेके जाएगा, मम्मी आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द ग्रुप डिस्कशन और द पीआई, तो the mother कलेजा कितना बड़ा। थिंक अबाउट दीस थिंग्स ना, ये एटीट्यूड्स मार गए हमारी जनरेशन। तो आओ पहले इस गीत को गाते हैं, उसी के आगे रीडिंग और उसी के आगे राइटिंग चाहिए। जो हमारे लेसन प्लान्स हैं, दे शुड बी एज अप्रोप्रिएट, दे शुड बी सीक्वेंशियल। अभी आपसे बनवाए जाएंगे लेसन प्लान्स, आपको स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेजेस में भाषा लेके जानी होगी, ठीक है? आर्ट इंटीग्रेशन में आर्ट का मतलब सिंगिंग भी है, सिंगिंग का आर्ट का मतलब डांसिंग भी है, आर्ट का मतलब विजुअल भी है, राइट? क्या हमने अपने देश की डाइवर्स चीजों से बेनिफिट उठाया? लैंग्वेज का मीडियम फेल है, लैंग्वेज का मीडियम, सर वो पीपीटी मेरी लगी हुई है कि और नीचे राइट साइड पे
पहला टर्म है ऑडिटरी, जो सारा का सारा ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन्स रानी कुछ तो सी, उसे उल्लू उसे ऊन, चुड़िया रानी दाना ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक अकबर नानू अकबर ओसे ओढ़ी ओसे औरत मेरी माँ की भोली सूरत, हमसे अंगूर आसा खाली बच्चों बजाओ नमस्तस्ते 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 नमो नमः। खड़े हो जो भाई, बैठे क्यों? देखो यहाँ पे जाओ, पार्टिसिपेट एवरीबॉडी। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। अ से अनार, आ से आम, पढ़ना तो है अपना काम। हम दो पैर से करें, दो से बाहर जाओ। आ से आम, पढ़ना तो है अपना काम। ई से इमली, ई से पिटिया रानी कुछ तो सी, उसे उल्लू उसे ऊन, पिटिया रानी दाना फूल, ऐसे ऐसे अगली बात आपकी है। भोली सूरत ओसे ओखली ओसे औरत मेरी माँ की भोली सूरत, हमसे अंगूर आपसे काली बच्चों बजाओ लेकर ताली। बताइए फिर से बिल्कुल बताइए। एनईपी कहता है इंडियन इन्फोर्स वापस लेकर आओ। क्या विद्या को माँ कहना, बड़ों के पैर छूना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना क्या इंडियन इन्फोर्स नहीं है? बहुत सुंदर। कैन यू क्लैप फॉर मैम? पहले सबसे पहले माता देखिए। से औरत मेरी माँ की भोली सूरत, से आम पढ़ना तो है अपना काम। ई से इमली, ई से ई, पिटिया रानी कुछ तो सी, उसे उल्लू उसे ऊन, पिटिया रानी दाना फूल, ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक मकर नादू बक जग जग, ओसे ओखली ओसे औरत मेरी माँ की भोली सूरत, हमसे अंगूर आसा खाली बच्चों बजाओ लेकर ताली। सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते से आम, पढ़ना तो है अपना काम। ई से इमली, ई से ई, पिटिया रानी कुछ तो सी, उसे उल्लू उसे ऊन, चिड़िया रानी दाना फूल, ऐसे एड़ी ऐसे ऐनक मकर नाटू बक बक चक चक, ओसे ओखली ओसे औरत मेरी माँ की भोली सूरत, हमसे अंगूर आसा खाली बच्चों बजाओ मिलकर ताली। मजा आया कि नहीं आया? इसी पे टूका टेबल डाल मैं कैसे दुनिया में कहीं पर भी होगी ना पहचान जाऊंगी, सिर्फ ग्रीटिंग से। भाटिया मैम ने पढ़ाई हुई हो क्या? क्योंकि मैं बच्चों को विश करना सीखा। मैम शुभ अपराह्न बोलिए मैम। शुभ अपराह्न। शुभ अपराह्न। आप बोलो बेटा। लालू में हमारी जाएंगी कंट्रीज और पीलू में जाएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा मैम ये हमारा नियरेस्ट लालू है, तो मैंने कहा वो माता सरस्वती के फूल चोरी कीजिए ना, इसको लालू बना दिया हमने। तो हम अपने लालू को यहाँ रख रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कंट्रीज इसमें और कैपिटल्स। और प्लीज गो अहेड। आकाश की ओर से आप सभी को प्रणाम। ये प्रणाम में तो इस हॉल को हिलना चाहिए था। दोबारा बोलते हैं। आकाश की ओर से आप सभी को हमारा प्रणाम। आजकल करुणा कितने शब्द ये आ से देख लीजिए, किसके ऊपर है और ये ओ से कितने 10 ये जरूर देखना चाहिए।
तो ई से है सुनाई, पकड़ी, पढ़ाई, परीक्षा। जब भी आप क्लास में जाए, जरूरी नहीं है कि रोज आप पढ़ाई। For some time, for few minutes, you must take it out for some of the other activities so that you inculcate a kind of interest. Somebody said interest as well, है ना? So that it creates interest. बच्चे का पूरा इंटरेस्ट उसके आपके क्लासरूम में हो, वो समझे कि मेरी टीचर सिर्फ मुझे पढ़ा ही नहीं रही है ना? And it is not that कि आपको छोटी क्लासेस में करना है, सीनियर सेक्शन PGTs can also think of some or the other activity which gets them back to the classroom and have the interest. So, can we have the video? How many of you know if you're happy and you know? Everybody? So we'll have a small part of dance also. Awesome. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it, and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, faster. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, turn around. क्या रूप होना चाहिए? राइट? और लेकिन शब्द पीछे पाँच छह शब्द से भाग रही वचन। भारत उनके शौर्य की वजह से हमारे देश का नाम भारत। बहुत सुंदर, अति सुंदर। भारत उसका फिर अर्थ बदल जाता है ना, भारत के साथ उनका नाम जुड़ा गया, लेकिन भारत का अर्थ होता है जो लगातार चमकता रहे। भारत आत्म से समर्थशील है, भारतीय भाषते रहता भारत जो हमेशा। ये मेरे पास नहीं था, ये मुझे सीखने को मिला है सर से। लेकिन जब आप विनम्र रहते हैं तो आप सीखते हैं। तो जो हमेशा चमकने में रत है वो भारत है। क्या बात है, क्या नहीं? तो भारत हमारे लिए बहुत और सबने बोलना है, सिर्फ एक या दो जगह नहीं बोलेंगे। Boring, but something which is beyond normal, that is not abnormal. Beyond normal is not abnormal, my friends. That is your imagination. So exaggeration of what? Exaggeration of numbers, exaggeration of size, exaggeration of shape, exaggeration of colors. किसी भी चीज का, राइट? आपको एक उदाहरण में खड़े खड़े आपके माइंड में मैजिक कर लो, मुझे मार्क कर दीजिए जरा से। बनती जा रही है, ऐसे ही बोलते ना बड़े बुजुर्ग, राइट? लेकिन ये ना और एंडिंग जब इस नर्व एंडिंग से मिलता है, synapse. The more the synapses a teacher is able to create, the more successful that teacher is. जब आप exaggeration का सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं, तब ये synapse हंसाते 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 सर्दियों में न जाने क्या क्या सिखा गए। तो ऐसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी का नाम नहीं जाता दोस्तों। एक इक्वेशन लिखो, एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डिनरी इक्वल्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। I want every teacher sitting over here to be honored as an extraordinary teacher. ये मैम जब पढ़ाती है, सर जब पढ़ाते हैं, पता नहीं क्लास में क्या जादू हो जाता है। पढ़ाते तो सारे ही, पता नहीं ये मैम पढ़ाती है क्या पढ़ाती है। I want you to be honored like this. Let us take one example. बुल्गारिया की कैपिटल, बुल्गारिया। ऑलराइट, कोई चिंता की बात नहीं। जब आप बुल्गारिया 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 बोलते हो तो आपके माइंड में क्या सुनाई पड़ने लगता है? बुडापेस्ट, कौन एरिया?
बुल गिर गया। बुल कहाँ गिर गया? मेरे सोफे पे। हाय मेरा 2 लाख का सोफा, मेरे ड्राइंग रूम में बुल कैसे आ गया? वो भी मेरे सोफे पे कैसे आ गया? बुल गिर गया की कैपिटल सोफिया है। लिखो लिखो बुल गिर गया सोफिया। अब बताओ जिंदगी में कभी भूलेगा? पहले तो सुनाई पड़ेगा बुल, फिर सुनाई पड़ेगा गिर गया। तो बजाओ आपके सामने साइन अप क्रिएट कर दी। It's all in the state of your mind. How do you use the power God has given to you? You are all learned scholars. ये exaggeration किस चीज का हुआ था? बुल एरिया सोफिया में मैंने किस चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला? But event, I exaggerated an event. ऐसा थोड़ा होता है मैम, ऐसे थोड़ी ना होता है। See, I created an image in your mind which is not normal. I created an extraordinary. ऐसा तो होता ही नहीं मैम। बुल सोफे के ऊपर क्या कर रहा है? That you will never forget in your life. I have created an image in your mind. And believe me, my friends, आपको 3 शब्दों का ब्रह्मास्त्र दिया था। Visual reinforces verbal. दिया था कि नहीं दिया था? हो गया? अच्छा मैं प्रिंसिपल मैम आए जरा बता दो बुल्गारिया की कैपिटल क्या होती है? I love you my daughters. यार देख लो कितने जोर से सुना। मैम ये सारा आपने मैम ग्रुप्स के नाम अंकुर, who's अंकुर? अंकुर यही ग्रुप था। हंस वाहिनी, ये वाला क्या मतलब है इसका? आकाश, आकाश की ओर। आकाश की ओर। अच्छा आकाश की ओर। उमंग, अनमोल, हमारी कितने 1 2 3 4 5 हमारे तो देखो मैम उसको कहाँ लेके चलेंगे? मैम सुनाई दो एक बार, सुनाई दो, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मैम भी तो सुनो। मैम जितने भी वर्ड्स थे उनको मैंने माला में पिरोया है। हमारा अंकुर अंकुरित होकर हंस वाहिनी पर सवार आकाश की ओर उमंग भरी अनमोल व उत्कृष्ट उड़ान भरता है। वेरी गुड। हिंदुस्तान की एक है किशन चहल जी, उनका नाम गिनीज बुक। 8 का 2-3 बार बोलो क्या सुनाई पड़ता है? क्या सुनाई पड़ता है? 8 hands। 8 hands को ध्यान से 5-6 बार बोलो तो क्या सुनाई पड़ता है? Now what are those 8 hands doing? They are putting grease on each other's feathers. 8 ही मुर्गियां क्यों है, 7 में 9 क्यों नहीं है? और वो भी दूसरे के पंखों पे ग्रीस क्यों लगाएगी? See, I created an image which is unbelievable. I created an image which is not normal. I created visualization in your mind, and visual reinforces verbal. नाम इसको रात को हाँ बजाओ, ताली बजानी जल्दी बजाओ। मेरे हाथ में कोई टूल्स नहीं है। हम कहते हैं हम आर्ट इंटीग्रेशन के लिए सामान कहाँ से लाएं? मेरे पास कोई सामान ही नहीं है, तो खड़े खड़े रहते हैं। कितना कि नहीं? कुछ नहीं है मेरे को। थोड़े ना देखो, हंसते हंसते कर रहे हैं कि नहीं? Create images, create stories. A good storyteller is the best teacher. I can either be a saint on the stage or a guide by the side. पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मदद आती होती, रात को इसने 20 कैपिटल सुनाई थी, सुबह अंडा होता है कि नहीं? सुनने को पड़ता है। आज से अंडा नहीं है, आज से 8 मुर्गियां आएंगी जो एक दूसरे के पंखों पे ग्रीस लगाएंगी। इटली की कैपिटल क्या है? अब इसकी कहानी जरा खुद बनाओ, एग्जैजरेशन करो, साइज, नंबर, शेप, इवेंट्स। आपको मैम इडली खा के मेरा रोम रोम उठता है। इडली खा के मेरा रोम रोम मुझे पसंद है। आपको पसंद है? क्लैपिंग कर दो। मैम ने खड़े होकर कपाट से इडली खा के मेरा रोम रोम खेल उठता है। बहुत सुंदर। ये निरोपिक्स नहीं है क्या? एक मैं बोलो बोलो बोलो, जितने लोग बोलना चाहते हैं बोलो। जापान की बात आई है, लेकिन किसी ने टोकना नहीं दिया। जापान की टोक्यो। अब जापान की कैपिटल क्या निकली? लिखते जाओ भैया, हीरे निकल रहे हैं।
लिए हम एक और कहानी बना देते हैं। एक रूम है इतना बड़ा इतना बड़ा कि इतना बड़ा कोई दुनिया में रूम ही नहीं है। उसके अंदर एक ही इडली है, इतनी बड़ी कि उसके अंदर पैर नहीं कोई रखा। मैम इतनी बड़ी इडली तो हो ही नहीं सकती, इडली तो इतनी क्यों फट जाती है। I created an image. I created an image which is exaggerated in size. क्या मजा आ रहा है। अब फटाफट हमारे लालू की एक्टिविटी आ रही है, अंडरलाइन करके यहाँ पेज खोलिए। आप इसकी मदद से मैंने PhD के स्कॉलर्स तक को करवाया हुआ, राइट। सो जिनके पास कंट्रीज आएंगी वो क्या डायलॉग्स बोलेंगे, जिनके पास कैपिटल्स आएंगी वो क्या डायलॉग्स। ठीक है, सब लोग लिखो पहले। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज, अपना नाम पूरा बोलना, राइट। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज उर्वशी भाटिया, तो जब मेरे पास कंट्री आएगी तो मैं अपना पूरा नाम, माय नेम इज उर्वशी भाटिया, आई गॉट द नेशन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूरा आपने बोलना है, आई गॉट द नेशन और उस नेशन का नाम, जैसे जापान है। ठीक है, थर्ड लाइन क्या हो गई, आई गॉट द नेशन, जो भी नेशन। फोर्थ, वेयर इज माय कैपिटल, वॉशिंगटन DC। फर्स्ट लाइन क्या है, गुड आफ्टरनून, अब आई एम, अपने जो भी आपके पास कैपिटल आई, आई एम टोक्यो, आई एम द कैपिटल ऑफ जापान, हेलो जापान। ठीक है, थर्ड लाइन क्या है, आई एम टोक्यो द कैपिटल ऑफ द नेशन जापान। आपने कैपिटल वर्ड बोला, कैपिटल का नाम बोला, नेशन वर्ड बोला, नेशन का नाम, और फिर आपने आके उनके साथ हैंडशेक किया और दोनों इकट्ठे मिलके खड़े हुए। लंच पीरियड में सबने कहना, ओए जापान सारी जिंदगी के उसके मत्थे पे लिखा जाना है, थे जापान तो थे। अब बताओ बच्चा भूलेगा क्या। क्लैपिंग करो, दिल से करो। 10 लोग इधर आ जाओ फटाफट, और 10 लोग इधर आ जाओ। ठीक है, हो जाएगा। Please pay attention. Now we are starting with this group. I am giving countries. So Lalu is going countries. ये हमारा परमानेंट हीरो है। अभी इससे आपको मैथ्स भी करवाने वाले, जादू आपकी क्लासेस में आपके सामने होने वाले, राइट। प्लीज पिक अप आंसर। नहीं, भगवान का पसंद वो क्या हुआ, हम थोड़ी बना हमारे लिए ना, वो लोग इंग्लिश को काट प्रोग्राम से और है मेरे साथ। आई गॉट नेशन जापान। वेयर इज माय कैपिटल, टोक्यो। वेयर इज माय कैपिटल, टोक्यो। I am Tokyo. I am the capital of the nation Japan. Hello Japan. हैंडशेक करो, फोन माइक मुझे दो। चलो My name is Nitin Maduria. I got the nation Canada. Where is my capital? ओटावा। नहीं है जी। आप झूठे बोले बन गए। अच्छा आप हैं। Good afternoon. My name is Shalini. I am Ottawa. I am the capital of Canada. Hello, Canada. Good afternoon. My name is Poonam Siman, and my nation is Australia. Where is my capital? Canberra. Oh, thank God, भगवान ने लाज रखी। Good afternoon. I am Preeti Kaushal, and I am the capital of Australia. I am your Canberra. I'm your Canberra. My name is Karuna Jambal. I am nation Sri Lanka. Where is my capital? कोलंबिया तो उधर साउथ अफ्रीका में। Good afternoon, everyone. My name is Sudhir, and I am the capital of nation Sri Lanka. I am Colombo. चलिए हैंडशेक कीजिए। Hello, ma'am. My name is Shweta. I got the nation Japan. Where is my capital? Tokyo. हमें अब चिट दिखाने किसी को दिखना थोड़ा ना हमारी। Good afternoon. My name is Varsha Sood. I am Tokyo. Tokyo.
and I am the capital of Japan. Hello, Japan. Hello, good afternoon, everyone. My name is Neeraj Bharadwaj. I got the nation. I am Thailand. And where is my capital, Bangkok? Mamapani. Bangkok. Good afternoon, my name is Amrita and I am the capital of Thailand, Bangkok. I am your Bangkok. Good afternoon, my name is Ranjana Sharda. I got the nation United States of America. Where is my capital, Washington DC? Good afternoon, myself Anil Sharma. I am the capital of America, Washington. United Nations. United States Nations. of America. Washington DC. Hello, America. Hello everyone, my name is Rekha Sharma and I've got the nation Argentina. Where is my capital? Buenos Aires. My name is Pashmina Chaudhary. I am Buenos Aires, the capital of the nation Argentina. My name is Ashisu. I've got the nation Switzerland. Where is my capital? Bern. My name is Bhushan Pal and I am a capital of Switzerland. I am Bern. I tell you, these moments make me cry. ठीक है, वो कॉपी में डालेगा. दूसरा जना उसका आगे से डायमीटर, फिर स्केल से. अच्छा, रेडियस कैसे बताओ? नो, डोंट गिव मी दैट डेफिनेशन. वो आपके और मेरे लिए है. वो मेरे और आपके लिए है दोस्तों. बच्चे को आप विजुअलाइज कैसे करवाओगे? बच्चे जिस जवाब को मैं ढूंढ रही हूँ, जवाब मुझे बच्चे को रेडियस दिखाओगे कैसे? धागा आधा कर देना रेडियस नहीं है. गो टू द ट्रूथ. छोटे वाला जो हम जमीन पे सर्कल बना दें, उसके अंदर पेपर वो भी एक सर रेडियस दिखाने का बहुत अच्छा तरीका है. क्लैपिंग हो सकती है, बहुत बढ़िया तरीका. पेपर फोल्डिंग हो सकती है. कागज है, कैंची है, करके दिखाओ मुझे. कागज है, मुझे सर्कल बना के And then fold it. We made a cone, so this is the radius. They have already created a circumference. कैसे दिखाओगे? Circumference क्या है? पूरा गोला जो है बाहर का, that is circumference, right? और diameter कैसे दिखाओगे? हाफ जो हो गया वो diameter हो गया. और radius क्या जमीन पे रंगोली बना के भी हम ये चीजें करा सकते हैं बच्चों? विजुअलाइज कराओ. 8th 9th 10th तक के बच्चों को क्लियर नहीं होता पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस में क्या वो आती है. उनसे ज्यादा जेलसी उनको दिखना ऐसे ही होता है ना. उसको ज्यादा इंटेलिजेंट माने की वजह. लेकिन अगर ऐसे पढ़ाया जाए कि वो ज्ञान ना मेरा हो ना वो आपका हो, बल्कि वो हमारा हो, कोलैबोरेटिव हो, ना कोई इंफीरियर ना कोई सुपीरियर. अगेन विद स्टोरीज. डॉक्टर कलाम का लाइफ में उत्थान हुआ था या पतन हुआ था? उत्थान हुआ था, एग्रीड. लेकिन हम याद किससे करेंगे? विपरीत से, दैट इज पतन. पतन की स्पेलिंग बताओ क्या होगा? कितना हो गया? कॉपी में लिख लो, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस किनेस्थेटिक ऑडियो विजुअल आपके सामने सवाल है. PAT हमेशा के लिए PATAM एक टर्म लिखो साथ में, मेमोरी हुक्स. वी आर क्रिएटिंग मेमोरी हुक्स इन योर माइंड, इन योर फिंगर्स. क्योंकि मेमोरी सिर्फ माइंड में नहीं है, आपके
फिंगर्स में यहाँ सुबह ही करवाया तो उसी से खत्म कर रही हूँ. Alright, please open your hands like this, palms like this. P A T A N. Once again. P A T A N. Good. हम किस ग्रह को भी अगर नीचे पृथ्वी है तो ऊपर क्या है? आकाश. आगे दूसरी मिसाइल आकाश की ओर जाने वाला कौन सा ग्रुप है भाई? आकाश की ओर. हमारे सुपर डुपर हीरो शंकर बाबा की अभी हमने बनाई थी, उनका बर्थडे बनाया था शिवरात्रि. क्या पेपर लेके खड़े होते हैं? आगे तीसरी मैम ने हमें सुबह से खिला पिला के फ्यूल डाला हुआ है. गैस बोलते हैं क्या निकलता है? चौथी मिसाइल आ गई. फिर हमारे सुपर डुपर हीरो शंकर बाबा गले में क्या पहन के घूमते हैं? ना वहाँ पे नवरत्न बैठे हैं, वो 9 लाख का हाथ है. 5 मिसाइल आ गई. Now please tell me the names of the 5 missiles of Dr. APJ Abdul Kalam. I love you, my dear. हंसो खूब, हंसाओ सबको, बड़ी चीज है हंसना, पर है मुंह पर हंसना सीखो. आप पंख में हंसना, पंख वाली पिक्चर. जब हम दूसरे की कमी पे हंसते हैं तो हम आपकी पिक्चर में सबका मन हर्षा. गॉड ब्लेस. Coming to an end of this session, okay? So I would like that the participants, they should give some takeaways or feedback of the program. Everyone, on behalf of Principal Ma'am and whole staff of Devon Public School, I extend my heartiest vote of thanks to Dr. Upasana and Ms. Urvashi Bhatia ji for their insightful and engaging workshop on art integration. Your session has inspired us to see new possibilities for integrating art into our curriculum, and undoubtedly it will enhance our teaching learning practices. Thanks for reminding us to stay connected to our roots. तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग. It was really good, too good, ma'am. Thank you so much. Good afternoon to everyone. On behalf of Sacred Heart Convent, from 5 of us have come. We all are very happy today. I would like to thank our resource persons for your words of wisdom have truly touched our hearts today. We have gained a lot. Session was really innovative, inspirational and mind-blowing. We also thank the school management for organizing such a lovely capacity building program on such a relevant topic. Thanks for your hospitality, ma'am, and the sumptuous meal provided to us. We are taking back sweet memories of this highly interactive, lovely session, and each one of us assure you that we'll try to give a great and fun-loving experience to our students as well, as you have given us today. And I hope such workshops are often held so that we gain such learning experience every time. And thanks once again. Thank you so much. Good everyone. So again, first of all, I would like to thank Dr. Upasana ma'am also. Like she has told us about the need of art integration in all the subjects, right? Then the other sessions were taken by Urvashi ma'am. What to say, Urvashi ma'am? I'm speechless. Like I don't know when, like time was 10 and now it's I think 4:15. We were continuously busy in activities, isn't it? Yes. It was so like mesmerizing, knowledgeable, informative, and yes, side by side our brain was working that how we can apply in our subjects also these activities. So thank you so much, ma'am. Wonderful sessions. And thank you, Principal ma'am, that you have given opportunity that ma'am has come and she has taken this. Really, I think everyone workshop. has enjoyed a lot. Thank you so much. Definition from one person to another, and yet it has the power to bring everyone together. So art is the ability to express oneself creatively. Greetings of the art to all the educators present here. Today, I am honored to propose a vote of thanks to today's resource
resource persons appointed by CBSE COE Panchkula on behalf of our entire staff. It has been such an honor to be the part of this wonderful capacity building program. I would like to express our sincere appreciation and heartfelt gratitude to Dr. Upasana Vashishta and Madam Urvashi Bhatia for her insightful presentation. It was indeed a very creative and informative day filled with unique insights to make our teaching learning process more joyful and fun-filled. We will definitely incorporate these valuable strategies in our teaching learning process for the holistic development of our students. Thank you so much, ma'am. First and foremost, we are incredibly grateful to our Madam Principal, Mrs. Anupam, for her invaluable support and guidance which made this program possible. A big thanks to all the participants for their active involvement and making this program engaging. Thank you so much. And finally, I want to thank everyone here for attending and making this event a success. Your presence is greatly appreciated. Thank you so much everyone for your time. Thank you so much. Once again, from all of us, I think the whole session from morning till evening, I think it was so mesmerizing, it was so wonderful. I think teachers must have learned so many methods, so many techniques and how this arts can be incorporated in your daily teaching learning process and how your teaching can be made joyful and interesting. So thank you so much, Ma'am Urvashi and Ma'am Upasana. The wonderful session you both have conducted. Thank you so much. And thank you CBSE COE Panchkula also. Those are giving us this opportunity to host these kind of workshops, these kind of programs. Thank you so much. The session was very, very interactive. I think you were so enthusiastic. Everybody was participating with so much of enthusiasm. That means a lot. You know, if you are not there, I think the program could not have been a successful event for today. Thank you so much, everyone. Thank you.